today we are going to discuss about percentage yield and percentage purity. ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन है जिसमें जैसे A प्लस B गोइंग टू गिव प्रोडक्ट C. इफ 1 मोल ऑफ A and 1 मोल ऑफ B is producing 0.5 mole of C, then it is what is the percentage yield in this reaction. So percentage yield is equal to percentage yield is equal to product obtained what? Actual and divided by product expected and what? Theoretical. Theoretically we are expecting that 1 mole of A, 1 mole of B will give 1 mole of C, but actually into 100. Actually what we are getting 0.5 and we are expecting 1 mole into 100 and that comes out to be what? 50%. What is the percentage yield in this case? 50%. Now we are going to discuss another. यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. N2 plus O2 gives 2NO. अगर इसका 28 ग्राम इसका 32 ग्राम लेते हैं और इसका 15 ग्राम मिलता है तो बताना है इस रिएक्शन में परसेंटेज यील्ड कितना है. परसेंटेज यील्ड के लिए हमें क्या चाहिए? मोल ऑब्टेन्ड, मोल कितना मिला, एक्चुअल मोल ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल. इस रिएक्शन से हम कितने मोल की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव 2 मोल ऑफ NO, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 2 मोल ऑफ NO. Try by yourself, then I will solve. So first we see this is 1 mole. We will convert mass into mole. Mass into mole is what? Mass upon molar mass. And this is also 1 mole. So according to equation, and here how many mole of this? 0.5 mole. From 1 mole of these gases, एक एक मोल इन गैसों का लेते हैं तो हमें 0.5 मोल मिलना चाहिए. हमें 2 मोल मिलना चाहिए. But how many mole we are getting? Only 0.5 mole. So what will be the percentage yield? Percentage yield will be mole obtained, actual mole. हमें दिया होगा हमेशा कि कितना मोल मिलेगा. And mole from the equation we are expecting 2 mole into 100. And you can find out what will be the percentage. Tell me what is the percentage? 25%. Now we will discuss about percentage purity. Percentage purity क्या होता है? Percentage yield और percentage purity सेम होता है. कैलकुलेशन के लिए अलग अलग लैंग्वेज में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि MgCO3 को हम हीट करने पे हमें मिलता है MgO प्लस CO2. अगर हमसे कोई कहे क्वेश्चन में कि 84 ग्राम MgCO3 हमने हीट किया और उस इक्वेशन में दिया हुआ है कि 22 ग्राम CO2 ऑब्टेन हुआ, तो बताओ कि इस सैंपल की प्योरिटी कितनी है. क्या सैंपल 100% प्योर है? तो अगेन परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला क्या होगा? परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला होगा प्रोडक्ट ऑब्टेन, एनी प्रोडक्ट अमॉन्ग देम, एनी प्रोडक्ट विच एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, जिसका इंफॉर्मेशन दिया हो. तो प्रोडक्ट ऑब्टेन, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, और वो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल मतलब कंडीशन में दिया होगा, अपॉन प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड. प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड व्हाट? थ्योरेटिकली इनटू 100. अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं 84 ग्राम MgCO3 मीन्स 1 मोल. 1 मोल MgCO3 से हमें CO2 कितना मिलना चाहिए? 1 मोल. 1 मोल मीन्स 44 ग्राम. बट हमें मिल कितना रहा है? 22 ग्राम. तो अगेन मोल ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और मोल ऑब्टेन्ड?
that is 0.5 mole. And how many mole we are expecting? 1 into what? 100. So 50%. Means what? This sample is not 100% pure. We are going to take another example. एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो, a plus 2b gives AB2 and we are taking 1 mole of this and 1 mole of this and we are obtaining 0.25 mole of AB2. Then what is the percentage purity? Simple. From 1 mole of A and 1 mole of B, here limiting will be also. You can identify limiting. If you don't know limiting, then you can see my limiting reagent video. So here 2 mole of B, 1 mole of A. 1 mole react with 2 mole. So 1 mole will react. 2 mole require 1 mole. So 1 mole require half mole. This is the limiting. So half. 2 mole gives 1 mole. 1 mole gives 1 by 2. And 2 mole gives 1 mole. 1 mole will give how many mole? Half mole. And how many mole we are getting? Only 0.25 mole. So what will be the percentage purity? 0.25. And theoretically we are expecting for what? 0.5 into 100. What it comes out to be? What it comes out to be? What is the percentage purity? हम एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट डेटा नहीं दिया होगा, आपको वॉल्यूम दे देगा, एसटीपी पे मास दे देगा, मोल के सेंटर में नहीं देगा. फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखें कि ये 245 ग्राम के Cl3 को हम हीट करते हैं और एसटीपी पे जो ऑक्सीजन गैस मिला उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर आया, तो पूछ रहा है कि इस सैंपल में KClO3 की प्योरिटी कितनी है. KClO3 की प्योरिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज यील्ड का तो वही फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी का, कि मोल ऑब्टेन्ड अपॉन मोल एक्सपेक्टेड. सो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लें तो कितना मोल है? ये 2 मोल. और यहाँ जो ऑक्सीजन गैस मिल रहा है इसको मोल में कन्वर्ट कर लें तो मोल में एसटीपी पे जब एट एसटीपी दिया हुआ है, एसटीपी पे जब किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हम 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 1 मोल. अगर आपको मोल में कन्वर्जन में एसटीपी पे प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो देख के आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. लिंक में दिया होगा या देख सकते हैं आप सर्च करके. तो यहाँ 2 मोल, फ्रॉम 2 मोल वी आर एक्सपेक्टिंग 3 मोल, बट फ्रॉम 2 मोल वी आर गेटिंग 1 मोल. 2 मोल से हमें 1 मोल मिल रहा है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा? मोल ऑब्टेन अपॉन 2 से हमें 3 मिलना चाहिए था और मिल कितना रहा है? 1. तो हम कितना मोल मिला हमें? 1. और एक्सपेक्ट हम कितना कर रहे हैं? 3 into 100 and that comes out to be what? 33.33%. मीन्स ये सैंपल कितनी इसकी प्योरिटी है? 33.33.